پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر لندن کی مشہور سرخ بسوں پر برانڈ پاکستان مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 100 ڈبل ڈیکر بسیں پاکستان کی تاریخی عمارتوں اور سیاحتی مقامات کی شاندار تصاویر کے ساتھ متنوع ثقافت، تاریخ اور معاشی طاقت کا اظہار کر رہی ہیں۔ بیورو چیف کے غلام حسین اوان اس پر رپورٹ کریں گے۔ پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے ایک برطانوی پاکستانی کاروباری کمپنی ون ہومز کے تعاون سے ڈبل ڈیکر ریڈ بسوں پر ایک میگا برانڈ پاکستان مہم کا آغاز کیا ہے جو 2 ہفتے جاری رہے گا۔ برانڈ پاکستان مہم ہائی کمیشن کی پاکستان کی 70ویں یوم آزادی کی تقریب کا حصہ ہے۔ بس مہم میں اسلام آباد مونومنٹ، مشہور پہاڑی چوٹی K2، بادشاہی مسجد اور پاکستان میں تیار ہونے والے 3 ورلڈ کپ فٹ بال کی شاندار تصاویر شامل ہیں۔ یہ مہم لندن کے معروف ترین راستوں پر چلائی جائے گی جن میں آکسفورڈ اسٹریٹ، ایچویئر روڈ، پیکاڈیلی سرکس اور لندن کے مشہور ہیڈ ووڈ اسٹورز شامل ہیں، جہاں اس مہم کے دوران 10 ملین سے زائد افراد کی جانب سے دیکھے جانے کی امید ہے۔ برانڈ پاکستان مہم پر بات کرتے ہوئے ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ون ہومز کے عاقب حسین کا لندن میں مہم شروع کرنے میں ہائی کمیشن کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ برانڈ پاکستان مہم پاکستان کی سیاحت کی صلاحیت، قدیم تاریخ، ثقافتی تنوع اور اس کے امیج کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہائی کمشنر آف پاکستان معظم احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ ان بسوں کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ایمبیسیڈر ایٹ لارج برائے سرمایہ کاری ذیشان شاہ نے لندن کو دنیا کا دارالحکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے لندن سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ون ہومز کے CCO عاقب شاہ نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا۔ We are proud to support such a fabulous initiative. Pakistan's economy is on an upward trajectory and it's a great campaign. 100 buses running all across London promoting Pakistan, promoting business in Pakistan on this 75th anniversary. One Homes is proud to sponsor this campaign in partnership with the government of Pakistan. لندن کی مشہور زمانہ سرخ بسوں پر روزانہ لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس تشہیری مہم کو 10 ملین لوگ دیکھیں گے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کہا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر عدلیہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے۔ عدلیہ کے دباؤ میں کام کرنے کا تاثر درست نہیں۔ وہ لندن کے نواحی علاقہ ریڈنگ میں پاکستانی سینٹر کے چیئرمین میاں محمد سلیم کی رہائش گاہ پر ہونے والی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مزید تفصیلات غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ میں پاکستان سینٹر کے چیئرمین میاں محمد سلیم کی رہائش گاہ پر کمیونٹی کی تقریب ہوئی جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال نے خصوصی شرکت کی۔ کمیونٹی کی نمایاں سیاسی و سماجی شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی۔ تقریب میں پاکستانی سیاسی، معاشی اور عدالتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر عدلیہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہے۔ عدلیہ کے دباؤ میں کام کرنے کا تاثر درست نہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس اسجد جاوید گھرال نے کہا کہ پاکستان میں ججز کے فیصلے بغیر کسی دباؤ کے میرٹ پر ہوتے ہیں۔ اگر 1000 میں سے ایک کیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اس سے عدلیہ کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عدلیہ پر جو ذمہ داریاں آئی ہیں وہ پوری ایمانداری سے اور قانون و آئین کے مطابق ادا کی جا رہی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں بہت جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو، کسی کے فیور میں فیصلہ آئے یا کسی کے مخالف آئے، ججز نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ نے اکثر یہ چیز آتی ہے کہ کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ تنقید کا باعث بنتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روز کے سینکڑوں کیسز فیصلہ ہوتے ہیں؟ میں لاہور ہائی کورٹ کی بات اگر کروں تو ہر روز سینکڑوں ڈیسیجن ہوتے ہیں۔ کتنے کیسز ہیں جو کسی پر تنقید ہوتی ہے؟ یعنی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے ہفتوں بعد، مہینوں بعد، سال بعد جا کے کسی پر تنقید ہوتی ہے۔ اگر 2000 یا 5-10,000 کیس میں ایک کیس پر کوئی تنقید ہو بھی جائے اور وہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر، میرے خیال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کے کیس کی سماعت سے معذرت کرنے پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج کسی کیس کی سماعت نہیں کرتا تو ضروری نہیں کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہو۔ بعض اوقات دیگر وجوہات کے باعث ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ پر کوئی دباؤ آتا ہے۔ اگر وہ بندہ کیس نہیں سن رہا تو اس کی کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ دباؤ برداشت کیا جاتا ہے۔ میں اپنے پورے 6 سال کا ٹینیور میں ایک دفعہ بھی آج تک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی طرف سے کوئی دباؤ ہو۔
जब भी फैसला किया है अपनी ईमानदारी से, अपनी जो भी पूरी सलाहियतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उसके मुताबिक फैसला किया है, कानून आएगा और मेरिट के मुताबिक फैसला किया है। किसी को नहीं पसंद आता तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा मेरिट के मुताबिक फैसला किया है। जस्टिस अजहर जावेद खराल ने कहा कि अपने 6 साल कैरियर में जितने भी फैसले किए ईमानदारी के साथ अपनी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए मेरिट पर बगैर किसी दबाव के किए। मियां सलीम की जानिब से दिए गए इस अशाइये में एहसन करल, वजीर अली, अमजद तारड़, सुल्तान हयात समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK। बर्मिंघम में बरतानिया के सबसे बड़े इस्लामिक सेंटर के प्रोजेक्ट की तामीर के लिए जामे मस्जिद कादरिया ट्रस्ट में कम्युनिटी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कम्युनिटी रहनुमाओं ने शिरकत की। पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने इजलास की सदारत की। इजलास में प्रोजेक्ट के इब्तिदाई मराहिल का जायजा लेकर आइंदा के लिए रोड मैप तैयार किया गया। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासिम। यूके यूरोप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन की इब्तिदाई तामीर के सिलसिले में कम्युनिटी का मुशावरती इजलास पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी की जेर सदारत हुआ, जिसमें साबिक लॉर्ड मेयर काउंसलर चौधरी मोहम्मद अजीम, राजा मोहम्मद इश्तियाक समेत दीगर मकामी कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके इब्तिदाई मरहल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी रमजान ने बर्मिंघम सिटी काउंसिल की जानब से दी जाने वाली प्लानिंग परमिशन के हवाले से शुरा को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक यूके और यूरोप के सबसे बड़े प्रोजेक्ट इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन की प्लानिंग परमिशन मुकम्मल हो चुकी है, जिस पर तकरीबन 7 लाख पाउंड के अखराजात हैं। मुकर्रीन का कहना था कि इन अखराजात को पूरा करने की गरज से ही हमने हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात के साथ मशावरती इजलास किया है, ताकि इन अखराजात को पूरा करने और मुस्तकबिल करीब में अपनी कम्युनिटी के बच्चों की तालीम और तरबियत के पेश नजर अहम अमूर पर बातचीत हो सके। इस मौके पर पीर तैयबुर रहमान कादरी, हाजी रमजान चौधरी, खादिम हुसैन और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की बरतानिया में अशद जरूरत है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन बरतानिया में एक अलामत बन जाएगा, जिसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाएगी। We need your support, and this center not only will it cater just for the Muslims, but inshallah it will cater for all communities, all faiths, and people of non-faith, inshallah it will cater for as well. So this is something to give back from the Muslim community to, as I say, not only to the Muslims, but to the non-Muslims as well. So Islamic Center of Britain, we need your support today. आज यहाँ कादरिया ट्रस्ट में हमारी एक मीटिंग हुई है पीर तैयबुर रहमान साहब की सरपरस्ती में, और यहाँ पे हमने ये फैसला किया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो यहाँ एक इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है, जो यूरोप का सबसे बड़ा एक सेंटर होगा, उसके अंदर बड़े जदीद किस्म के वो वहाँ चीज़ें रखी गई हैं, और ये इन चीज़ों की हमें अब ज़रूरत है कि इस्लामिक भी इस किस्म का जदीद किस्म का जो यहाँ हमारा सेंटर है वो होना चाहिए। पूरे मुल्क में दीनी तालीम हो, दूसरी तालीम हो, मैंने तजावीज़ सुनी मेंबरान की जो ये फरमा रहे थे कि फ़ंड रेजिंग और स्कूल और इसके अलावा दीनी तालीम, ऐसा ट्रस्ट जो कायम किया जा रहा है, ऐसा इस्लामिक सेंटर जो कायम किया जा रहा है जिसमें इस्लाम भी पढ़ाया जाए और जिसमें दुनियावी तालीम भी पढ़ाई जाए, स्कूल की तालीम भी पढ़ाई जाए, तो वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कामयाब होगा। पूरे बरतानिया के अंदर कातुल इमाम है, और हमें इस वक्त ब्रिटिश बोर्न इमाम और स्कॉलर चाहिए कि जिनके साथ हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। और आजकल के जो जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो इस्लामिक स्कॉलर हैं यंग ब्रिटिश, उनकी मजालस जो हैं उसमें भरपूर वो आते हैं। तो इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन जो कादरिया ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया और एक संग मील इंशाअल्लाह साबित होगा। साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अजीम ने भी इजलास में शिरकत की और इजहार ख्याल किया। इस मुल्क में रहकर हमारे लिए ये दिन ब दिन जो एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही पीछे है। मजहबी के लिहाज से सोचें या बाकी इकनॉमिक लिहाज से सोचें, तालीमी लिहाज के सोचें, तो मैं समझता हूँ इन सब के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर माशाल्लाह, इसमें हर फैसिलिटी मौजूद होगी। मेरी ज़्यादा तो जो कम्युनिटी के लिए है
और इंशाल्लाह ताला उस पे जो मस्जिद की दीनी तालीम होगी वो इंशाल्लाह होगी और बड़ी अच्छे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होगी। इस्लामी मरकज की खिदमत के अज़म का इजहार करने वाले साबिक लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अजीम का ये आखिरी इजलास साबित हुआ। इजलास के बाद वो इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल पर कम्युनिटी ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। इजलास के दीगर शुरा ने इस्लामिक सेंटर ऑफ ब्रिटेन जैसे प्रोजेक्ट को दौरे हाजिर के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नागजीर करार देते हुए तमाम मुखैर हजरात से बढ़ चढ़ कर तामन की अपील की है। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में वेल्स यूनाइटेड की शानदार कामयाबी पर वेल्स की कम्युनिटी की जानिब से जश्न मनाया गया। नौमुंतखब ओहदेदारान की शानदार कामयाबी पर मिठाइयाँ तकसीम की गई और इजहार तशक्कुर भी किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान। वेल्स के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में दो ग्रुपों वेल्स यूनाइटेड और यूनिटी नजरियाती पैनल के दरमियान मुकाबला हुआ। वेल्स यूनाइटेड ने 278 जबकि नजरियाती पैनल सिर्फ 110 वोट हासिल कर सका। वेल्स यूनाइटेड पैनल से मोहम्मद आसिफ सदर, मंजूर अहमद नायब सदर, ख्वाजा अली अजमल जनरल सेक्रेटरी, चौधरी अशरफ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, मुदस्सर अहमद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और विमेन सेक्रेटरी नसरीन खान कामयाब हो गयी। यूनाइटेड पैनल की इस शानदार जीत की खुशी पर वेल्स की कम्युनिटी ने 9 मुंतखब ओहदेदारान के साथ मिलकर मुबारकबाद पेश की, मिठाइयाँ तकसीम की गयी और इजहार तशक्कुर किया गया। 9 मुंतखब ओहदेदारान और दीगर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो वेल्स में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भरपूर काम करेंगे और उनको दरपेश मसाइल के हल के लिए मिलकर हल तलाश करेंगे और पीटीआई जमात को मजीद मजबूत और मौसर अंदाज में चलाएंगे। मैं सबसे पहले अपनी बेटियों, बहनों और तमाम अजीज़ कारब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज हमें इस तारीखी इलेक्शन में कामयाबी करवाई। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इंशाल्लाह हम सब मिलजुल के चलेंगे। यहाँ पे आज जो हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की गैदरिंग थी वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अनाउंसमेंट हुई है जिसमें पीटीआई वेल्स यूनाइटेड ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। हमारे इस पूरे प्रोसेस का और एक मकसद जो था वो पार्टी को मुस्तहकम करना था। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मोबिलाइज कर सकें। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें वोट दिया, हमें सपोर्ट किया। इंशाअल्लाह ताला हम आप पूरी कोशिश करेंगे, मैं और मेरा पैनल आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरे। New additional general secretary for new election happened just yesterday for PTI Wales, and I'm thanking for everybody whoever helped us to win this election. मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन वेल्स, मैं सब अपने सपोर्टर का, वोटर्स का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट की और इलेक्शन जितवाया। थैंक यू वेरी मच। सब ने जो मिलकर हमें मेंबरशिप दी है और पहली मरतबा 3 दुगना वो मेंबरशिप हुई है और ये सब कर रहे हैं, हम पीटीआई के लिए कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे इससे बेहतर होगा। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की तवाज़ा बेहतरीन खानों से की गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। गर्मी की शदीद लहर की वजह से बरतानिया, वेल्स, स्कॉटलैंड के मुतअद्दिद इलाके खुशसाली और कहत की लपेट में आ गए हैं। वेल्स के जनूबी मशरकी इलाकों में बाकायदा खुशसाली का ऐलान कर दिया गया है। इस माह के शुरू में खुश्कसाली का ऐलान पेम्ब्रोक शायर और कार्मार्थन शायर के कुछ हिस्सों के लिए किया गया था। खुश्कसाली का ऐलान नए डेटा के तज्जिये के बाद किया गया जिसमें दरिया के कम बहाव, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह और रिहाइश गाहों और नहरों पर पड़ने वाले असरात शामिल हैं। वेल्स की हुकूमत ने खुश्कसाली की सूरत हाल के बाद शहरियों से अपील की है कि वो पानी के इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें। वेल्स के कुदरती वसाइल के इदारे के मुताबिक मुतासर इलाकों में अपर सेवन, वाई, यूसिक, टाफ, रेमनी, एली और थाओ नदियों के एरियाज शामिल हैं। 22 अगस्त तक वेल्स में 30.8% बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि माजी के मुकाबले में इंतहाई कम है। इसी वजह से दरिया 40 साल के अरसे में पहली बार कम पानी की वजह से खुश्क हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के नए बाब का महवर और मरकज इक्तसादी ताल्लुकात हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तानी बरामदात मुल्की टैक्स सेक्टर की नुमाया शरह नमू और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी तारकीन वतन पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने पाक अमेरिका ताल्लुकात के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात की तारीख क़याम पाकिस्तान की तारीख के लगभग है। गुज़श्ता 7 दहाइयों में दोनों ममालिक ने इलाकाई और आलमी अमन के क़याम के लिए एक दूसरे के शाना बशाना कोशिशें की हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में सिक्योरिटी से मुतल्लिक
का मालूमात, तामीर और तरक्की और इक्तिसादी पहलुओं पर गालिब रहे। ताहम मौजूदा दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात के फरोग के हवाले से मुकम्मल इत्तेफाक राय पाया जाता है। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि हालिया दिनों में होने वाले दो तरफा रवाबित, आला सतही हेल्थ डायलॉग और दीगर इदारा-जाती रवाबित इस तहकीक का आईनादार हैं। ये बातें उन्होंने नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के वफ्द से खिताब करते हुए कहीं। मुख्तलिफ सर्विसेज से ताल्लुक रखने वाले सीनियर अफसरान का वफ्द इन दिनों अमेरिका के दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद है। सऊदी अरब में डिज्नी लैंड कार्टून फनकारों की कहकशां बच्चों और बड़ों का दिल बहलाने पहुंच गई। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में मकामी सऊदी शहरियों के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के तारकीन वतन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। पसंदीदा कार्टून्स को अपने दरमियान पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तफसीलात के लिए देखते हैं उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में डिज्नी लैंड के मशहूर ज़माना कार्टून की कहकशां उतर आई। कार्टून्स ने अपनी शरारतों और दिलचस्प करतबों से शायकीन को खूब महसूस किया। सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनक्किदा डिज्नी लैंड कार्टून फनकारों ने इब्तिदाई तकरीब में धुआंधार परफॉर्मेंस से बच्चों समेत बड़ों को भरपूर तफरीह फराहम की। रंगो रोशनियों से सजे इवेंट में हर तरफ मुख्तलिफ कार्टून कैरेक्टर अपनी परफॉर्मेंस के रंग जमाते दिखाई दिए। बच्चों के पसंदीदा कार्टून किरदार मिकी माउस को हाजिरीन की जानिब से खूब पसंद किया गया। इसके अलावा डोनाल्ड डक, बिग बैट समेत दीगर मारूफ कार्टून फनकारों ने भी दिलचस्प परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल मोह लिए। डिज्नी फ्रोजन कार्टून सीरीज के फनकारों ने भरपूर परफॉर्मेंस दी और शुरा से खूब दाद वसूल की। डिज्नी ऑन आइस मैकी फ्रेंड्स मेला 21 सितंबर तक जारी रहेगा। उमर अली, 92 न्यूज़, रियाज। यूएई में मुकीम पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया स्टार, शोबी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद बनी मेहमान दुबई के मकामी कैफे में नई लॉन्च होने वाली इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी की रंगारंग तकरीब और दिलकश तकरीब का अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में हुनरमंद और बासलाहियत पाकिस्तानियों की टीम ने आलमी मयार की इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी लॉन्च करके मिसाल कायम कर दी। लॉन्चिंग तकरीब को टिकटॉकर, सोशल मीडिया स्टार्स और शोबिस शख्सियात की शिरकत ने 4 चांद लगा दिए। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने शुरा को अपनी कंपनी के हवाले से तफसीलन आगाह किया और डॉक्यूमेंट्री दिखाई जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात दिखाई गयी जिन्हें हाजिरीन ने बहुत पसंद किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कंपनी की टीम मेंबर्स और शुरा का कहना था कि कंपनी की टीम बहुत ही पेशावर और बासलाहियत है जो किसी भी तकरीब को यादगार बना सकती है। पाकिस्तानी वाइब है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी डिफरेंट नेशंस यहाँ पे हैंडल करती हैं, तो 5 इवेंटम इज अ कोर बेस ऑफ पाकिस्तानी पीपल। सो ये एक बहुत बड़ी खासियत है और हम लोग कमिंग एट द एंड ऑफ द ईयर समथिंग बिग कंसर्ट इज कमिंग अप जिसका आर्टिस्ट का नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, बट दैट कंसर्ट विल बी अ मार्क इन यूएई। बहुत ज़बरदस्त आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपके वेडिंग्स हो, कोई भी प्राइवेट इवेंट हो, बर्थडेज हो, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस पॉइंट इनका ये है कि सारे इन्फ्लुएंसर्स इनके साथ हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह इट विल बी गोना वेरी ब्लास्टिंग एंड गुड। चाहे आपके बर्थडे इवेंट्स हो, वेडिंग्स हो, किसी तरह की आपकी प्राइवेट पार्टीज हो, आप लोग 5 इवेंटम से कांटेक्ट करें। दे आर द होल सोल आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, सारा वन स्टॉप शॉप है। 5 इवेंटम का मेन जो मोटो है हमारा, to make it memorable. आप लोगों का कोई भी पर्सनल इवेंट है, although it's a wedding, it's a fashion show or whatever it is, हम we are best in it, we make it memorable. टीम मेंबर्स का कहना था कि साल के आखिर में एक इवेंट होने जा रहा है जो बहुत ही धमाकेदार होगा। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात इसमें अपने फन का मुजाहिरा करेंगी। उन फनकारों का नाम इस वक्त जाहिर नहीं किया जा सकता, ये आवाम के लिए सरप्राइज होगा। तकरीब के आखिर में मेहमानों और ऑर्गेनाइजर्स ने मिलकर लॉन्चिंग का केक काटा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात।